Hello everyone, welcome to the first podcast on It's a Sneaker Life. Well, we all express ourselves in various ways. Some write poems, some perform plays, some play guitar, or play tennis, or make fashion choices that define them. For me, it's sneakers all the way. My sneakers define who I am. I am a proud sneakerhead who believe that it's a sneaker life all the way. We all have an aura, and I point where our body meets for the surrounding. Physical space, revealing your identities, and your shoes are a valuable resource. Studies dating back to the early 1970s have proven that variations in sneaker colors, shapes, and styles of shoes. Well, for millennial sneakers have become intertwined with our identity. And through my podcast, we understand what sneakers mean to various people at various times in their life. Before we go forward, do comment on the sneaker choices. My first guest is a sneakerhead like me who likes to own and trade in sneakers. Please welcome Arnav Grover, a high school student, an entrepreneur, and a budding global hospitality expert who wants to have his own global sneaker brand one day with the help of local Indian artisans. So Arnav, how are you today? I am fine. How are you, Manar? I'm good. So let's move on to the conversation. Yeah, let's go on. Why are you so much into sneakers, Arnav? So there's a very weird story to it. My aunt had bought my brother an essentials hoodie और फिर मैंने उनसे पूछा कि ये हुडी इतनी महंगी क्यों है, तो उन्होंने बोला मैं यहाँ से लाई थी. तो फिर मैंने उस कंपनी के बारे में और जाना. आई हर्ड मोर अबाउट द कंपनी. देन आई थॉट दैट इट्स नॉट अ हुडी कंपनी बट इट्स ऑब्वियसली लाइक दैट कंपनी सो लाइक मोर ऑफ स्नीकर्स. तो वहाँ से आई वॉज इनटू स्नीकर्स. That's correct. From where do you regularly purchase sneakers and why? सो अगर रिटेल पे चाहिए तो वेज नॉन वेज या सुपर किक्स, पर अगर ज़्यादा पैसा खर्चने का मन करता है तो सीडीसी या मेन स्ट्रीट चले जाता हूँ. Free society भी एक choice है ना bro. हाँ फ्री सही है, उनकी सेल्स होती रहती है. How do you take care of your sneakers, Arnav? सो फर्स्ट एक तो अच्छे स्टोरेज में रखता हूँ, लाइक स्नीकर क्रेट्स मंगवाई हुई है, फिर उसमें रखता हूँ. फिर हर यूज़ के बाद एक एक मतलब जूते को अच्छे से पोंछता हूँ. जितने अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखता उतने तो जूते को साफ रखता हूँ भाई मैं. Which is your dream sneaker and why? तो मेरा ड्रीम स्नीकर इज़ द OG 1985, बिकॉज एक तो भाई वही जो जूता था उसने सबको इस स्नीकर गेम में लाया था. सब एकदम वो एकदम बेस्ट जूता है और माइकल जॉर्डन ने पहना है, तो मतलब सबका ही अपनी उसने गेम में पहना था. एग्जैक्टली भाई. What is your favorite sneaker brand? माई फेवरेट स्नीकर ब्रांड इज़ नाइकी, बिकॉज क्योंकि एक तो जूते बहुत स्टाइलिश है और ऐसा नहीं कि हर जूता सेम होता है, हर जूते की डिफरेंट स्टोरी होती है, कोई अलग से मटेरियल यूज होता है और मतलब कलर्स बहुत अच्छे होते हैं. What was the first pair of sneakers you have ever bought? इट्स द जॉर्डन 1 मिड लकी ग्रीन्स. But why have you bought it? क्योंकि फर्स्ट इट वाज अ वेरी वर्सेटाइल शू, क्योंकि वाइट और ग्रीन मतलब ऑलमोस्ट एवरी आउटफिट के साथ चले जाता है, तो बस और कंफर्टेबल लगा था जब पहली बार पहना था. तो Have you ever waited in line or camped out for a sneaker release? If yes, tell me about your experience. yes, so on 18 July 2022 there was a shoe release named Air Jordan 4 Yellow Thunders. Yeah. तो me and Manar waited outside veg non veg. I remember. We like waited for 3 hours और उसके बाद भी हमको कुछ नहीं मिला और बस हम रोते रोते बाहर आ गए क्योंकि वो जूता नहीं मिला. और आज उस जूते की वैल्यू लाइक बहुत ज़्यादा है. Yeah, that's a great shoe. So Arnav, let's move on to the drip and drop questions. ठीक है, पर ये ड्रिप और राउंड सेगमेंट मैं होस्ट करूँगा. सो मनर, मैंने सुना तो अपने आप को बहुत बड़ा स्नीकर हेड बोलता है ना. वो तो हुई मैं यार. ठीक है, आज तेरे ही जूतों में बताऊंगा ड्रिप और राउंड कैसे खेलते हैं. फर्स्ट जूता द जॉर्डन 1 कॉज या द जॉर्डन 6 स्टारफिश. I will take the Jordan 1 cause because वो बहुत लिमिटेड एडिशन पेयर है एंड मतलब बहुत लोगों के पास नहीं है, तो मेरे लिए तो वो भाई तो पर ड्रॉप दिस हैज कंफर्ट. मेरे लिए ड्रॉप दिस इज नॉट अ गुड पेयर बट आई ओ दिस, सो दिस इज अ कूल पेयर. सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट शू. सबसे 2 मोस्ट कंफर्टेबल स्नीकर्स इन योर कलेक्शन, द पिंक Balenciaga ट्रेनर्स और दिस लिमिटेड एडिशन चैंपियन. I'll choose the pink Balenciaga. अबे But पिंकी भाई भाई तू बहुत बायस हो रहा है.
रणवीर सिंह भी पहनता है इसको एयरपोर्ट पे ऐसे पिंक शूज। अब बहुत हो गया ये भाई तू ही Pink- पहनियो, मैं तो नहीं पहन रहा ये पिंक जूता कहीं भी। कोई नहीं, मैं रख लेता हूँ ना, मेरे ही तो जूते हैं ये। ठीक है भाई। अब देख मुझे इतना पता है तू बास्केटबॉल तो नहीं खेलता, सही पर बात है। द जॉर्डन 5 वाई नॉट्स और द जॉर्डन 1 फ्लाइट क्लब सबसे I'll ज्यादा choose- पहनता है तू इस जूते। I'll choose that one because उसका भी एक एक्सपीरियंस था। वो जूता मैंने एक लंदन में लाइन में खड़े होकर खरीदा था एंड आई मेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स उमेश यादव देयर। तो ये मेरे हिसाब से ये मेरे लिए बहुत अच्छा जूता है See, and I lucky would जूता है। choose this shoe, but the story behind this. Yeah. Now, your two most favorite, the Travis Scott low or the Jordan 4 Midnight Navies. यार तेरे को तो पता ही होगा, आई चूज द ट्रैविस स्कॉट रिवर्स वोकर्स ओनली बिकॉज ये इतने महंगे, इससे कोलैब। अब ट्रैविस स्कॉट को ही देख रहा है, ट्रैविस स्कॉट के इतने अच्छे गाने। मैं ट्रैविस स्कॉट को ही मेनली, मतलब ट्रैविस स्कॉट ही मेरा फेवरेट सिंगर है, तो आई चूज द ट्रैविस स्कॉट। अच्छा भाई, पैसे छोड़ना एक खत्म ट्रैविस स्कॉट के गाने का नाम बताइए। गूज बम्स, तेरे को पता है कोई? भाई फील लेट्स गो ब्रो। द Yeezy 350 Oreos या Jordan 1 Mid। यार आई चूज द Yeezy 350s बिकॉज ये भी सेम रीजन है, बहुत कंफर्टेबल है और ये भी कोलैब जूता है कान्ये वेस्ट के साथ। तो मुझे कान्ये वेस्ट भी ठीक लगता है, मतलब ट्रैविस स्कॉट से उतना अच्छा नहीं है बट कान्ये वेस्ट इज आल्सो गुड। देख मैंने अभी भी वही पहन रखी है, द ओजी कार्बन बेलुगास। ठीक है, और ये जितने जूते इसमें से तू कौन सा बेचना चाहेगा हमेशा हमेशा के लिए? वैसे तो मैं कोई बेचना नहीं चाहूंगा, बट तेरे को अगर चाहिए पर तभी मैं तेरे को नहीं दूंगा। तू कौन है? मेरा भाई भी नहीं लगता तू अच्छी तरीके से मेरा, तो मैं नहीं बेचना चाहूंगा। थैंक यू अर्नव फॉर कमिंग इनटू माय पॉडकास्ट। थैंक यू ब्रो फॉर हैविंग मी हियर।